जेईई मेंस 2026 सेकेंड अटेम्प्ट आंसर की हैज बीन रिलीज्ड एंड आई थिंक कि आप लोगों ने जो है शायद अपने यहाँ पे आंसर्स जो है चेक कर लिए हो और थोड़ा सा आइडिया लग गया हो कि हाउ वाज योर परफॉर्मेंस इन द सेकेंड अटेम्प्ट। अब जिनका भी यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, शायद उनको लग रहा है कि अब बाकी एग्जाम्स का वो क्या करे, मन में एक डर सता रहा है और उसी में से काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम है योर वीआईटी ट्रिपल ई 2026। तो आपको यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि दिस वीडियो कैन बी अ गेम चेंजर फॉर योर वीआईटी ट्रिपल ई एग्जाम। इसके अंदर मैं कुछ ऐसी चीजें आपके लिए लेके आया हूँ, एक प्रॉपर जो है आपको क्या प्लान की रिक्वायरमेंट है वो मैंने इस वीडियो में जो है डिस्कस किया है। सो इफ यू आर एबल टू एग्जीक्यूट दिस प्लान प्रॉपरली, भाई वीआईटी ट्रिपल ई के अंदर 400 प्लस का स्कोर आपका कहीं पे भी नहीं जा रहा है। अब सबसे पहले तो यहाँ पे जो है स्लॉट बुकिंग के लिए एक चीज जो है ध्यान रखना कि अगर आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे लेवल पे है तो यहाँ पे अर्ली स्लॉट जो है बुक करने की कोशिश करो ताकि दूसरे एग्जाम्स लाइक बिटसाइट का सेकंड अटेम्प्ट भी रहेगा ना, तो उस पे जो है आप यहाँ पे फोकस और अच्छे से कर पाओगे। बट इफ योर प्रिपरेशन इज नॉट गुड, बुक द लेटेस्ट स्लॉट सो दैट यू हैव इनफ टाइम फॉर सिलेबस कंप्लीशन एंड फॉर अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट। सो दिस इज अ सिंपल पॉइंट जो कि आपको यहाँ पे याद रखना है while doing the slot booking। तो अभी there has been no notification related to slot booking, so as soon as there is any notification related to slot booking we will immediately bring a video for that और आप जो है आराम से यहाँ पे slot booking की प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएंगे। Now एक चीज आप समझिए कि अभी तक जो हुआ वो हुआ, लेकिन जो लास्ट के आपके पास यहाँ पे 10 to 14 डेज रह गए हैं, इन दिस यू हैव टू डू अ प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन विथ complete consistency and discipline, and for that we have launched two best and most relevant VIT EEE 2026 crash courses. First one is your booster course and second one is your VIT EEE 2026 crash course. If we look over the differences, so in the booster course you get total 5 number of mock tests and in the crash course you get 10 full length mock tests. Then aptitude and English lectures are common in both the courses. Short trick sessions are there in both the courses, which will help you to boost your speed and accuracy, because VIT EEE exam is all about speed and accuracy. There are total 125 questions which you need to attempt in 150 minutes. So this is only possible if you are able to apply such kind of short tricks so that you can dedicate the remaining time in solving other type of questions. Also you get short notes for the PCM which will help you to revise everything in a very short span of time. Also you get exclusive question bank which contains the most relevant VIT EEE level questions and some of the questions you can expect in your paper also. Then you get the video lectures for PCM, but it is included only in the crash course, not in the booster course. So the crash course is a game changer for all the less prepared students. But if your preparation is decent, means you have already completed the syllabus for JEE, then you can go for the booster course where you get exclusive question bank practice and also get the sufficient mock tests. So the course price are simply for the booster course. Only for today there is a special price $14.99 by applying the discount coupon code VIT Booster, and for the crash course there is a special discount coupon code VIT Velour, using which you will get the course at a special price which is $24.99. But remember that the offer is only for today. So try to enroll in the course as soon as possible, and the mode of teaching in both the courses is English, so that there is no language constraint for any kind of students. Now if we look into the procedure for enrollment in course, so you have to simply follow these steps. Visit our website www.10qchallenge.in and you can complete the process. Still, if you have any doubt related to the course, you can call our team at the given number. Okay, so let's look first into the detailed syllabus related to your VIT EEE. So in physics, जो भी आपका जेईई मेंस के अंदर सिलेबस था ना, सभी चीजें आपको जो है देखने को मिलेगी एक्सेप्ट क्लास 11th का ये जो पोर्शन है आपका, इन विच यूनिट डायमेंशन एरर इज देयर, काइनेमेटिक्स, सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, ऑसिलेशन एंड वेव, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। सो डोंट वेस्ट योर टाइम इन कंप्लीटिंग दिस सिलेबस, क्योंकि कभी भी जो है हमें क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को नहीं मिलते। इसके अलावा केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो व्हाटएवर देयर इज इन द जेईई मेंस सिलेबस सब करना है, एक्सेप्ट मोल कॉन्सेप्ट का जो है आपका यहाँ पे मेंशन नहीं है सिलेबस के अंदर, बट बेसिक्स अगर कर लोगे तो दैट विल बी बेटर फॉर यू, बिकॉज इट इज लाइक अ फाउंडेशन फॉर ऑल द अदर फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर्स। देन स्टेट्स ऑफ मैटर भी जो है आपको करने की जरूरत नहीं है, ये तो वैसे भी ऑलरेडी जो है आपके यहाँ पे जेईई मेंस से भी डिलीट हो चुका है ना, तो यहाँ पे VIT EEE के अंदर भी जो है आपको नहीं पूछा जाता है। इसके अलावा आयनिक इक्विलिब्रियम के भी बस 1 से 2 टॉपिक है, तो वो आपको जो है यहाँ पे कर लेना चाहिए, बाकी तो पूरा देखने की जरूरत नहीं है। पीरियोडिसिटी के भी बस बेसिक्स नीडेड है, क्योंकि वो ब्रोशर में ऐसे काइंड ऑफ गिवन नहीं है।
इसके अलावा जो है आपका यहाँ पे हाइड्रोजन भी नहीं देके रखा है, तो उसको भी आप छोड़ सकते हो। पी ब्लॉक के अंदर 13, 14, 15 नाइट्रोजन और उसकी ऑक्साइड्स ये सब नहीं देके रखा है, बहुत ही कम चीजें पी ब्लॉक में देके रखी है। तो एक बार सिलेबस को अच्छे तरीके से देख लोगे तो वो पार्ट क्लियर हो जाएगा। देन क्वालिटेटिव एनालिसिस भी नहीं है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स, हेलो एल्केन, हेलो एरीन और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो ये सब चीजें नहीं है। बट ध्यान रखिए हेलो एल्केन, हेलो एरीन इसमें रिएक्शंस पूछी जा सकती है, क्योंकि ये चीज ब्रोशर में गिवन है, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट। तो भाई वो SN1 SN2 वाला जो पार्ट है वो इन चैप्टर्स में गिवन रहता है, हाइड्रोकार्बन में, हेलो एल्केन, हेलो एरीन में, तो वो इतना पार्ट आपको यहाँ पे देखना रहेगा। बाकी ये सब चैप्टर्स आपको नहीं करने की जरूरत है, लेकिन क्या करना है, सो सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, पॉलीमर्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एस ब्लॉक, दीज आर गिवन इन योर VIT ट्रिपल ई सिलेबस। और इसमें से ये सब जो है आपके डिलीटेड पोर्शन है जेई के, तो काफी सारे स्टूडेंट्स छोड़ देते, तो भाई इसको कंप्लीट करना है। एंड द गुड थिंग इज कि these chapters are already completed in our crash course। तो crash course has been designed in such a manner कि जो भी चीजें आपके ब्रोशर में गिवन है that all are completed from the VIT ट्रिपल ई पर्सपेक्टिव लेवल, तो आपको काफी हेल्पफुल रहेगा लास्ट टाइम के लिए। अगेन मैथ्स के लिए बात करूं तो एवरीथिंग विच इज देयर इन जेईई मेंस सिलेबस एक्सेप्ट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और स्टैटिस्टिक्स, ये आपको जो है यहाँ पे नहीं देके रखा है ब्रोशर में। कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स आपको करने पड़ेंगे, वन इज मैथमेटिकल रीजनिंग क्योंकि वो देके रखा है, एंड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स अंडर द मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स चैप्टर, तो ये भी जो है आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे। तो एक बार ब्रोशर को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा ताकि ये यूनिट डिवीजन भी आपको जो है क्लियर हो जाए और आप इस सिलेबस पे जो है लास्ट टाइम पे अच्छे से फोकस करो। फाइनली इंग्लिश और एप्टीट्यूड की मैं बात करूं तो भाई जो चीजें देखे रखी है उसी पे जो है प्रॉपर तरीके से फोकस करो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टू टेस्ट द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अ शॉर्ट पैसेज और लाइन ऑफ पोएम, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले हो गए। फिर इंग्लिश ग्रामर के सभी रूल्स अच्छे से कर लीजिए। प्रोनाउंसिएशन वाले क्वेश्चंस पूछे जाते तो समझिए कि वर्ड का जो है बोलने का तरीका किस तरीके से और कैसे जो है अपन उसको ब्रेक करते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन। प्लीज नोट दैट द पैसेजेस, लाइन ऑफ पोएम, डायलॉग्स, ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन आइटम्स आर चूजन टू सूट द लेवल ऑफ हायर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट एजुकेशन। तो ये जो क्लास 10th और 12th लेवल पे जो इंग्लिश रहती है बस उसी लेवल पे पूछा जाएगा, ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल का पूछा जा रहा है। एप्टीट्यूड में ये सारे पोर्शन को आप अच्छे से देख लीजिए। इवन एप्टीट्यूड के जो है मैं यहाँ पे कुछ वीडियोस आपके लिए लेके आ ही रहा हूँ, कैलेंडर का ऑलरेडी रिलीज कर दिया, आपने चेक नहीं किया तो जाके देख लीजिएगा। तो ये काफी हेल्पफुल रहेंगे फॉर योर VIT ट्रिपल ई प्रिपरेशन। और अगर आप जो है नेक्स्ट वीडियो भी चाहते हो तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट्स कि भाई एप्टीट्यूड और इंग्लिश के और वीडियोस जो है मैं यहाँ पे रिलीज करूँ, है ना, तो मैं आपके लिए जरूर से यहाँ पे लेके आऊंगा। देन सब्जेक्ट वाइज वेटेज की अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें फिजिक्स में कितने देखने को मिलेंगे, 35। देन केमिस्ट्री में 35, मैथ्स में 40, एप्टीट्यूड में 10 एंड इंग्लिश में 5, एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स and there is a negative marking of -1. So this is a very important point that negative marking in the VIT triple E has been introduced from this year. So you have to be very careful about attempting the question. कई सारे स्टूडेंट सोचते हैं तुक्के में कर देंगे, भाई तुक्का अब वर्क नहीं करेगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इज देयर, है ना। तो कीप दिस थिंग इन माइंड और उसी हिसाब से जो है अपने क्वेश्चंस के अटेम्प्ट आपको रखने हैं। इसके अलावा अगर हम पेपर लेवल की बात करें तो पेपर इज इजी एज कंपेयर टू जेईई मेंस एंड बिटसाइट। सो बिटसाइट का तो वैसे भी जेईई मेंस के मुकाबले थोड़ा इजियर साइड पे देखने को मिलता है, तो VIT ट्रिपल ई का पेपर इज बिट इजियर देन बिटसाइट आल्सो बिकॉज यू नीड टू अटेम्प्ट 125 क्वेश्चंस इन ओनली 150 मिनट्स। तो पेपर का लेवल वैसे ही रखना पड़ेगा कि स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए। बट ये रहता है कि सिलेबस कम रहता है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी हमारी थोड़ी सी यहाँ पे कम देखने को मिलती है, तो कट ऑफ काफी ज्यादा देखने को मिलता है ना। तो आपको एम भी जो है हायर साइड पे यहाँ पे लेते हुए चलना पड़ेगा। ओके, सो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 15 डेज रह गए, 14 to 50 डेज। लास्ट वाले स्लॉट्स की बात करें तो 5-6 दिन और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, तो 180 to 200 आवर्स का जो है अपने पास यहाँ पे टाइम है। ओके, तो अब ये जो 180 to 200 आवर्स का टाइम है ना, इसको काफी स्मार्टली आपको यूज करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू स्कोर वेरी गुड इन योर VIT ट्रिपल ई एग्जाम, है ना। तो इस चीज का प्लीज ख्याल रखिएगा। एंड एक चीज जो है मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देना चाहता हूं कि जो कि जरूरी है तभी जाके VIT ट्रिपल ई के अंदर एक अच्छा स्कोर आ सकता है, दैट 5 मॉक टेस्ट आर मस्ट। और मैं मान के चलता हूं कि भाई चलो आपने यहाँ पे जो है 5 मॉक टेस्ट को टोटल मिला के 20 घंटे आपके चले गए, मतलब 12.5 घंटे जो है एग्जाम में चले गए और 7.5 घंटे आपके जो है एनालिसिस वाले पार्ट में चले गए। तो 20 घंटे इसके लिए रिजर्व रख लो। ये जो आपका टाइम है इसमें से 20 घंटे माइनस कर दो, 160 आवर्स हमारे पास यहाँ पे बचते हैं। अब वो 160 आवर्स को जो है अपन को यहाँ पे करना है किसी तरीके से यहाँ पे डेडिकेट, ताकि ये 24 यूनिट्स, आपको पता होगा कि आपके यूनिट वाइज जो है चीजें देके रखी है, VIT ट्रिपल ई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे पूरा सिलेबस वहां पे क्लियरली मेंशन्ड है, तो इन यूनिट्स को इस हिसाब से कंप्लीट करना है।
अब एक अच्छी चीज मैं आपके लिए कर देता हूं कि कैसे यूनिट्स को आपको कंप्लीट करना है। वैसे तो 2 यूनिट पर डे उठाओगे तो भी कंप्लीट हो जाएगा, पर कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है ना कि कैसे जो है थोड़े हाई वेटेज कौन सा सेक्शन रहता है उस हिसाब से चीजें कंप्लीट हो जाए, या जो ज्यादा इजी हो उसको पहले कंप्लीट कर ले। तो उस हिसाब से यहाँ पे मैंने डिवीजन कर दिया आपके सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन का। बस एक बार ब्रोशर को अपने सामने रख लेना, मैं उसकी भी लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सिलेबस की, और इस डे वाइज जो है इस तरीके से आप उसको बस फॉलो कर लो। सो डे 1, डे 2, डे 3 में आपको जो है फिजिक्स का यूनिट 1, केमिस्ट्री का यूनिट 1 एंड मैथ्स का यूनिट 1 और यूनिट 2 को निपटाना है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे एंड होने पे जो है डे 3 को आप ट्राई करिए कि एक मॉक टेस्ट जो है आपको अटेम्प्ट करना ही है, तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। फिर डे 3, डे 4, डे 5 में फिजिक्स में यूनिट 2, यूनिट 3 कर लिया, केमिस्ट्री में यूनिट 2 कर लिया एंड मैथ्स में यूनिट 3, और फिर एट द एंड ऑफ डे 5 आपको जो है एक मॉक टेस्ट 2 दे देना है। फिर डे 6, डे 7 में क्या टारगेट करना है, यूनिट 4, यूनिट 3 और यूनिट 4 एंड 5 इन 2 दिन में कंप्लीट करना है। फिर से एट द एंड ऑफ 7th डे आपको एक और मॉक टेस्ट दे लेना है, तो मतलब 3 मॉक टेस्ट अपने इस तरीके से हो जाएंगे। फिर 4 दिन के अंदर ये यूनिट्स को आपको जो है टारगेट करना है एंड एट द एंड ऑफ डे 11 आपको एक मॉक टेस्ट फिर से देना है। फिर 12, 13, 14 में ये कंप्लीट करना है, और जो भी लास्ट डे रहेगा मतलब डे 14 उसमें एक मॉक टेस्ट देना है। तो यहां तक आपके 5 मॉक टेस्ट भी खत्म हो जाएंगे, और इसके बाद जो भी अमाउंट ऑफ टाइम रहेगा उसमें बस रिवीजन अच्छे से होना चाहिए। तो सिलेबस भी पूरा आराम से आप कंप्लीट कर सकते हो, 5 मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, रिवीजन भी दे सकते हो, प्रैक्टिकली सभी चीजें पॉसिबल है। पर यहाँ पे पता है मुझे कि बहुत ही कम आप में से स्टूडेंट्स कर पाएंगे, मुश्किल से 10%, क्योंकि भाई कंसिस्टेंसी ही नहीं है ना, आप लोग कंसिस्टेंट ही नहीं रहते हो। लेकिन अगर कंसिस्टेंसी रख ली, चीजों को प्रॉपर तरीके से कर लिया, तो डेफिनेटली कंप्लीट कर सकते हो। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इधर उधर जब डिस्ट्रैक्शन रहता है ना, चीजें नहीं हो पाती, तो उसी के लिए हमने जो है यहाँ पे कोर्सेस आपके लिए डिजाइन किए कि भाई एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ डालो और चीजें जो है कंप्लीट कर लो, तो आपके लिए वो गेम चेंजर साबित हो सकता है। और इतना ज्यादा अफोर्डेबल कर दिया कि भाई आखिरी में आप उसको अच्छे तरीके से यहाँ पे यूज कर पाओ। फाइनली शॉर्ट नोट्स को जो है यहाँ पे यूज करना, ताकि यूनिट्स को फटाफट आप रिवाइज कर पाओ, मॉक टेस्ट के पहले ही ट्राई करना। तो शॉर्ट नोट्स अगर आपने जेई के लिए भी प्रिपेयर करके रखे तो वो यहाँ पे भी यूज आ सकते हैं, या फिर अभी जैसे जैसे करते जा रहे हो उस हिसाब से जो है आप पढ़ सकते हो। इफ यू फेस डिफिकल्टी इन एनी पर्टिकुलर चैप्टर ऑफ एनी यूनिट, गो थ्रू अ वन शॉट। नहीं तो अगर जेई के टाइम पे ठीक ठाक लेवल पे तैयार था तो सीधा क्वेश्चन सॉल्विंग पे आओ, और क्वेश्चन सॉल्विंग में क्या कर सकते हो, नीट पीवाईक्यूज फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और एनडीए के जो पीवाईक्यूज रहते हैं वो मैथ्स के लिए, क्योंकि ये एग्जाम्स का लेवल आपका कहीं ना कहीं वीआईटी ट्रिपल के लेवल के आसपास रहता है, स्पीड बेस्ड एग्जाम है, ठीक है। फिर एनटीएससी और बैंकिंग एग्जाम्स के जो पीवाईक्यूज रहते हैं वो आप एप्टीट्यूड और बोर्ड के सैंपल पेपर्स के थ्रू इंग्लिश वाले पोर्शन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, तो इनको आप जो है लास्ट टाइम पे देख सकते हैं। और टारगेट आपका क्या होना चाहिए, योर फोकस शुड बी टू एटलीस्ट गेट अ सीएस या फिर सीएससी स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस इन कैटेगरी 1, क्योंकि कैटेगरी 1 से ही अपना भाई यहाँ पे रिटर्न और इन्वेस्टमेंट बेहतर हो सकता है। तो कम से कम 4000 से कम की रैंक लानी पड़ेगी, और कैटेगरी 2 के लिए 4000 से 8000 के आसपास रैंक लानी पड़ेगी, तब चीजें हो पाएगी। तो भाई ये अगर आप टारगेट रखना चाहते हो तो 400, 420, 430 वहां तक का स्कोर अपने को पहुंचना है। चीजें अचीवेबल है, लेकिन काम करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है ना। तो होपफुली सारी चीजें मेरे हिसाब से यहाँ पे आप सभी को क्लियर हो गई होगी। बाकी ऑफर्स आपके लिए आज के लिए वैलिड है, आप इनको जरूर से चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।